اپنی لائف کا کوئی خاص واقعہ ہمیں بھیجیں، شاید وہ ہماری اگلی خوبصورت کہانی بن جائے۔ بادلوں کے اس پار ایک ایسی دنیا تھی جسے عام آنکھیں کبھی دیکھ نہ سکیں۔ اس دنیا کا نام کوہ نور تھا، ایک چھپی ہوئی وادی جہاں ہوا میں خوشبو تیرتی تھی، درخت بولتے تھے، پرندے دعائیں گاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں بھی روشنی کا چراغ کبھی بجھتا نہ تھا۔ اس وادی کے وسط میں ایک بے مثال جھیل تھی جسے لازوال جھیل کہا جاتا تھا۔ اس جھیل کا پانی عام پانی نہ تھا، اس کی ہر بوند میں جادو، ہر لہرے میں زندگی اور ہر عکس میں صدیوں کی حفاظت چھپی ہوئی تھی۔ اس جھیل کی رکھوالی 5 پریاں کرتی تھیں، اور یہی 5 اس جادوئی دنیا کی اصل طاقت تھیں۔ 5 سہیلیاں، 5 الگ دنیائیں۔ امبر پھولوں، بیلوں، درختوں اور سبزہ زاروں کی پری تھی۔ اس کے ہاتھوں سے گزر کر سوکھی پودے پھر سے ہرے ہو جاتے، مرجھائی پھول کھل اٹھتے اور باغوں میں نئی زندگی دوڑنے لگتی۔ وہ سب میں سب سے نرم دل، مخلص اور صبر والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمدردی اور دل میں دوسروں کے لیے دعا ہوتی تھی۔ زرنش ہوا کی بیٹی تھی۔ وہ بادلوں کے ساتھ کھیلتی، پرندوں کی زبان سمجھتی اور دور دراز علاقوں کی خبریں ہوا کے ذریعے سن لیتی تھی۔ اس کی ہنسی تیز ہوا کی طرح آزاد تھی، مگر دل بہت صاف اور بے خوف تھا۔ جب وہ بولتی تو یوں لگتا جیسے بارش کے بعد کی ہوا گزر رہی ہو۔ ماہم رات کی روشنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملاتے تھے اور وہ تاریک رات کو بھی چاندنی میں بدل سکتی تھی۔ جب وادی پر اندھیرا چھاتا تو ماہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایسی چمک پیدا کرتی کہ پوری وادی روشن ہو جاتی۔ وہ خاموش ضرور تھی، مگر اس کی خاموشی میں گہرائی اور حکمت تھی۔ نیرا آگ اور حرارت کی مالکن تھی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب تیزی اور بے چینی تھی۔ وہ آگ کو قابو میں رکھ سکتی تھی، سردی کو پگھلا سکتی تھی اور مردہ شعلوں میں پھر سے جان ڈال سکتی تھی۔ مگر اس کے دل میں کبھی کبھی وہ خواہش جاگ اٹھتی تھی جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، طاقت کی خواہش۔ سحر پانی، برف اور جھیلوں کی محافظ تھی۔ وہ پانی پر چل سکتی تھی، اسے منجمد کر سکتی تھی اور موجوں کو قابو میں رکھ سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں پانی کو ناچنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ وہ بظاہر نرم تھی، مگر اس کے دل میں خاموشی کے ساتھ ایک ایسی آگ چھپی تھی جو وقت آنے پر سب کچھ بدل سکتی تھی۔ ان 5 کی دوستی ایسی تھی جیسے ایک ہی پھول کی 5 پنکھڑیاں۔ وہ ہر کام ساتھ کرتی تھیں، ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتی تھیں اور ہر خطرے میں وادی کے لیے ڈھال بن جاتی تھیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب کوہ نور پر سیاہ بادلوں کا سایہ چھا گیا۔ شمال کی طرف سے ایک ایسی قوت بیدار ہوئی جسے دھوئیں کا عفریت کہا جاتا تھا۔ یہ عفریت کوئی جسمانی مخلوق نہ تھا، بلکہ حسد، خوف، لالچ اور نفرت سے بنی ایک قدیم جادوگرنی تھی۔ وہ ہر چند صدیوں بعد جاگتی اور جادوئی زمینوں کی روشنی نگلنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس بار اس نے لازوال جھیل کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جھیل کے نیچے چھپا نیلمی پتھر پوری وادی کی قوت کا سرچشمہ ہے۔ جب عفریت کی سیاہ لہریں پہاڑوں سے اتریں تو پورا کوہ نور لرز اٹھا۔ ہوا میں زہریلا دھواں بھرنے لگا، پتے سیاہ ہونے لگے، پرندے راستہ بھول گئے اور جھیل کی سطح پر ایک خوفناک لرزش پیدا ہو گئی۔ 5 پریاں فوراً جھیل کے کنارے پہنچ گئیں۔ امبر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کے نیچے کھلتے ہوئے پھول مرجھا رہے ہیں۔ زرنش نے محسوس کیا کہ ہوا میں پرندوں کی چیخیں کھل رہی ہیں۔ ماہم کے ستارے اندھیروں میں کانپنے لگے۔ نیرا کی آگ کمزور پڑ گئی۔ سحر کی جھیلوں میں لہریں بے قابو ہو گئیں۔ تب وادی کے بزرگ درخت کی جڑوں سے ایک آواز آئی، اگر نیلمی پتھر کی روشنی نہ بچائی گئی تو کوہ نور ہمیشہ کے لیے تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ پریوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقتیں الگ الگ استعمال نہیں کریں گی، بلکہ ایک ساتھ مل کر جھیل کو بچائیں گی۔ امبر نے زمین کو زندہ کیا۔ امبر نے دونوں ہاتھ مٹی پر رکھے، اس کی انگلیوں سے سنہری روشنی نکلی۔ سوکھے درختوں کی جڑوں میں پانی دوڑا، پھولوں نے دوبارہ رنگ پکڑا اور زمین نے ایک نرم سی سانس لی۔ اس نے جڑی بوٹیوں کی مدد سے ایک حفاظتی دیوار بنائی تاکہ سیاہ دھواں وادی کے اندر نہ پھیل سکے۔ زرنش نے ہوا کو بیدار کیا۔ زرنش نے آسمان کی طرف رخ کیا اور سیٹی جیسی نرم مگر طاقتور آواز نکالی۔
फौरन ठंडी हवाएं उठीं। उसने परिंदों की झुंड को इकट्ठा किया, उन्हें महफूज मुकाम पर भेजा और तूफानी साए को हवा की दीवार से रोका। माहम ने रात में रोशनी उतारी। जब अंधेरा और गहरा होने लगा तो माहम ने अपनी हथेलियों से चांदी जैसी चमक निकाली। सितारों की किरणें झील पर गिरी और पानी आईने की तरह रोशन हो गया। उसकी रोशनी ने सियाह सायों को कमजोर कर दिया। नायरा ने आग को कैद किया। नायरा ने पहले तो अपनी आग को काबू में रखा, फिर उसने आतिशी दायरे बनाए जो सियाह धुएं के गिर्द लिपटे और उसे झील तक पहुंचने से रोकते रहे। उसकी आग ऐसी ना थी जो तबाह करे, वो ऐसी आग थी जो हिफाजत करती थी। सहर ने पानी की दीवार खड़ी की। सहर झील के वस्त में पहुंची। पानी की सतह पर चलते हुए उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। झील का पानी उसके हुक्म से उठा और एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर गया। ये शफ़ाफ दीवार रोशनी भी देती थी और दुश्मन को भी रोकती थी। पांचों की ताकत एक दायरे में जमा हुई। झील के ऊपर रंगीन रोशनियों का एक तूफान पैदा हुआ। आसमान गूंज उठा, जमीन कांपने लगी और फिर एक जोरदार चमक के साथ धुएं के अफरीत का पहला वार टूट गया। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। झील की तह में एक नीला चमकता हुआ पत्थर छुपा था, नीलमी पत्थर। यही वो मुकद्दस पत्थर था जो वादी को जिंदा रखता था। रिवायत थी कि ये पत्थर तभी अपनी असल ताकत जाहिर करता है जब पांचों महाफिज परियां एक साथ उसके गिर्द अपनी रोशनी भेजें। परियां झील के किनारे खड़ी हुईं और उन्होंने अपनी रूहों की ताकत पत्थर की तरफ रवाना की। अंबर ने जिंदगी दी, जरनिश ने हरकत दी, माहम ने रोशनी दी, नैरा ने हरारत दी, सहर ने सुकून और बहाव दिया। पत्थर ने एक नीली रोशनी में सांस ली। झील पुरसुकून हो गई, धुआं पीछे हट गया, वादी बच गई। पूरा कोहिनूर खुशी से झूम उठा। दरख्तों ने सरसराहट में शुक्र अदा किया, परिंदों ने नगमे छेड़े और झील की लहरों में पांचों परियों के चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी आसमानी फतह की पहली सुबह हो। मगर हर कामयाबी के बाद एक खामोश खतरा होता है, और वो खतरा अक्सर दुश्मन से नहीं, दिल से आता है। जंग के बाद नयारा और सहर के दिलों में अजीब तब्दीली आने लगी। अंबर, जरनिश और माहम लोगों के लिए हीरो बन गईं। वादी में हर कोई उनका नाम इज्जत से लेने लगा। बच्चे उनके गीत गाने लगे और बुजुर्ग उनके लिए दुआएं करने लगी। नयारा ये सब देखकर खामोश रहती, मगर उसके अंदर कुछ गड़ता रहता। उसे लगता कि वो भी इतनी ही बहादुर थी, मगर उसे वो मोहब्बत और एहतराम नहीं मिला जो बाकी तीनों को मिला। सहर के दिल में भी यही खलिश बैठ गई। वो सोचने लगी कि अगर नीलमी पत्थर की असल ताकत उसे मिल जाए तो वो सबसे बुलंद मकाम पर पहुंच सकती है। इसी दौरान एक पुरस्रार मुसाफिर काली वादी से कोहे नूर के करीब आया। उसके लिबास सियाह थे, आंखें बेनूर थीं और हाथ में एक कदीम असा था। वो एक जादूगर था, ऐसा जादूगर जो दूसरों के दिल की कमजोर जगह फौरन पहचान लेता था। उसने नयारा और सहर को अलग से मिलकर कहा, तुम दोनों कमजोर नहीं हो। कमजोरी सिर्फ तुम्हें इसलिए लगती है कि तुम्हारी ताकत को सही रास्ता नहीं मिला। अगर नीलमी पत्थर तुम्हारे हाथ आ जाए तो तुम इस वादी की नहीं, पूरी कायनात की मालकिन बन सकती हो। ये अल्फाज नयारा और सहर के दिल में जहर की तरह उतर गए। चांदनी रात थी। झील के पानी पर चांद का अक्स हलकोरे ले रहा था। अंबर, जरनिश और माहम देर तक वादी के मुहाफिज दरवाजों की मरम्मत में लगी रहीं, फिर थक कर सो गईं। उन्हें जर्रा बराबर भी शक ना था कि उनकी अपनी सहेलियां उनके लिए अंधेरे की राह चुन रही हैं। इसी रात नैरा और सहर खामोशी से झील के किनारे पहुंची। नैरा के हाथ में आग की सुर्ख चमक थी और सहर की हथेलियों में बर्फ की नीली चमक। उन्होंने नीलमी पत्थर के गिर्द एक खुफिया जादू शुरू किया। सहर ने पानी को जमा दिया ताकि झील की तह खुल सके। नैरा ने आग से वो मोहर तोड़ी जो पत्थर को महफूज किए हुए थी। झील में हलचल मच गई, जमीन कांपने लगी, आसमान पर स्याह बादल दोबारा जमा होने लगे। अंबर की आंख अचानक खुल गई। उसने खिड़की से झांका तो झील का पानी काला होता नजर आया। वो चीख कर बोली,
जरनिश, माहम, उठो, कुछ गलत हो रहा है। जरनिश और माहम भी घबरा कर जाग उठी। जब वो झील के किनारे पहुंची तो देखा कि नैरा और सहर पत्थर को झील से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। अंबर ने कांपती आवाज में पुकारा, नैरा, सहर, तुम ये क्या कर रही हो? ये पत्थर हमारी जिंदगी है। नैरा ने एक सर्द और बेरहम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी होगी अंबर, हमारे लिए ये सिर्फ ताकत है। हम अब किसी के साए में नहीं रहेंगी। जरनिश ने रोते हुए कहा, हमने एक दूसरे के लिए जान दी थी और तुम। मगर सहर की आंखों में अब वो पुरानी नरमी नहीं रही थी। उसने झील के पानी को बर्फ बना दिया और बोला, मोहब्बत और वफा की कीमत हमेशा कमजोरों को चुकानी पड़ती है। अब वक्त आ गया है कि ताकतवर जीतें। जैसे ही नैरा ने नीलमी पत्थर को पूरे जोर से खींचा, झील के अंदर छुपी हुई रूहें जाग उठीं। एक खौफनाक धमाका हुआ, रोशनी और अंधेरे का तसादम हुआ। जमीन फटने लगी, दरख्त झुक गए, परिंदे डरकर उड़ गए। नैरा और सहर पीछे जा गिरी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पत्थर को हाथ लगाने की गलती कर दी थी और इस गलती ने वादी की हिफाजती ढाल को चाक कर दिया था। अंबर ने तेजी से समझ लिया कि अब वादी को बचाने के लिए एक आखिरी रास्ता बाकी है, कुर्बानी। उसने आंखों में आंसू लिए माहम और जरनिश की तरफ देखा। अगर हमने अपनी पूरी ताकत नीलमी पत्थर को वापस ना दी तो वादी खत्म हो जाएगी, माहम ने धीमे लहजे में कहा। और अगर हमने अपनी ताकत दी तो? जरनिश ने उसकी बात मुकम्मल की। तो हम खुद उस रोशनी का हिस्सा बन जाएंगी। तीनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। उनके चेहरों पर खौफ जरूर था, मगर गुस्सा नहीं। ना ही नैरा और सहर के लिए बद्दुआ थी, सिर्फ दुख था, गहरा, सच्चा और मुकम्मल दुख। अंबर ने आखिरी बार झील की तरफ देखा, फिर बोली, हमने इस जमीन को जीना सिखाया है, अब इसे मरने नहीं देंगी। फिर तीनों ने अपनी तमाम जादुई कुव्वतें यकजा करके खुद को नीलमी पत्थर में जम कर दिया। एक ऐसी रोशनी फैली कि सारी वादी सफेद हो गई। सियाह धुआं जल गया, अफरियत की ताकत टूट गई, झील फिर से साफ हो गई। लेकिन अंबर, जरनिश और माहम हमेशा के लिए पत्थर का हिस्सा बन गई। नैरा और सहर खड़ी रह गईं, जिंदा मगर खाली। ना वो ताकत बची जिसके लिए उन्होंने धोखा दिया था, ना वो दोस्ती बची जिसे उन्होंने तोड़ा था, ना वो सहेलियां बचीं जो उनके दिल की सच्चाई थीं। अब वो लाजवाल झील के किनारे भटकती हैं। वो जब भी झील की तरफ देखती हैं तो पानी में उन्हें अपनी गलती का चेहरा नजर आता है। फूल उनके कदमों तले मुरझा जाते हैं, परिंदे उनके करीब आकर खामोश हो जाते हैं और हवा तक उनसे बात नहीं करती। कहते हैं कि बाज रातों में जब चांद बिल्कुल साफ हो तो झील की सतह पर 3 रोशन साई नजर आते हैं, अंबर, जरनिश और माहम के। वो अब भी वादी की हिफाजत कर रही हैं, मगर एक दूसरी दुनिया से, एक खामोश मगर अबदी जिंदगी में। झील का पानी अगरचे दोबारा साफ हो गया था, मगर उसकी गहराई में एक उदासी उतर आई थी। और उस उदासी से ज्यादा टूटी हुई कोई चीज थी तो वो थी नायरा और सहर। वो दोनों हर रोज लाजवाल झील के किनारे आती, घंटों खामोश बैठती, मगर झील अब उनसे बात नहीं करती थी। पहले पानी उनके कदम चूमता था, अब लहरें उनसे दूर हट जाती थीं। एक रात जब आसमान पर आधा चांद था और पूरी वादी नीली धुंध में लिपटी हुई थी, नायरा खामोशी से बोली, सहर, हमने क्या कर दिया? सहर की आंखों में आंसू भर आए। हमने ताकत के लिए अपनी दुनिया खो दी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक नायरा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने मुट्ठी भींच ली। मगर असल जहर उस जादूगर ने हमारे दिलों में डाला था। सहर ने आहिस्ता से सर उठाया। अगर वो हमें लालच ना देता तो शायद अंबर आज भी जिंदा होती। ये सुनते ही दोनों के दिलों में पछतावे के साथ एक नई आग जाग उठी। उन्होंने फैसला किया, जिसने हमारी दोस्ती छीनी, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अगली ही रात दोनों परियां कोहे नूर छोड़कर काली वादी की तरफ रवाना हो गईं। ये वही जगह थी जहां सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचती थी।
दरख्त काले थे, जमीन राख जैसी थी और हर तरफ अजीब सरगोशियां गूंजती थीं। रास्ते में हवा बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, जैसे वादी खुद उन्हें खबरदार कर रही हो। घंटों के सफर के बाद वो एक टूटे हुए महल के सामने पहुंची। दीवारों पर जलती हुई नीली आग अजीब साए बना रही थी। अचानक एक मानूस आवाज गूंजी, आखिर तुम दोनों आ ही गईं। वही जादूगर साए से बाहर आया। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा खतरनाक चमक थी। वो मुस्कुराया, तो कैसी लग रही है ताकत? ये सुनकर नायरा की आंखों में नफरत भर गई। खामोश रहो, उसकी आवाज महल में गूंज उठी। सहर ने गुस्से से कहा, तुमने हमें इस्तेमाल किया, हमारी दोस्ती, हमारा दिल सब बर्बाद कर दिया। जादूगर हंसने लगा, एक सर्द खौफनाक हंसी। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे दिल का अंधेरा जगाया था। लालच पहले से तुम्हारे अंदर था। ये जुमला तीर की तरह दोनों के दिल में लगा। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर नायरा चीखी, बस आज तुम्हारा खात्मा होगा। पूरा महल सुर्ख रोशनी से भर गया। किनेरा के हाथों से आग के शोले निकले। जादूगर ने अपने असा से स्याह धुआं पैदा किया जो सांपों की तरह उनकी तरफ बढ़ा। मगर सहर ने फौरन जादू किया। बर्फ की नीली दीवारें उठीं और धुएं को जमा दिया। जादूगर पहली बार घबराया। उसने जोर से मंत्र पढ़ा तो जमीन फटने लगी, दीवारों से साए निकलने लगे। दोनों ने एक साथ चीख कर अपना जादू छोड़ा। आग और बर्फ की ताकत आपस में मिल गई। एक अजीम धमाका हुआ। शहर का असा टूट गया। उसके जिस्म से स्याह धुआं निकलने लगा। तुम समझती हो ये सब खत्म हो गया? तुम अपनी गलती कभी नहीं मिटा सकती। नैरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, हम जानती हैं। जादूगर तो खत्म हो गया था, मगर नैयारा और शहर के दिल का बोझ बाकी था। वो खामोशी से वापस लाजवाल झील पहुंची। रात बहुत खामोश थी। हवा सर्द थी। झील के पानी पर चांद टूटा हुआ लग रहा था। दोनों झील के किनारे बैठ गईं। पहली बार नैयारा जोर जोर से रोने लगी। वही नैयारा जो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ी थी। अंबर, हमें माफ कर दो। शहर ने झील के पानी को छुआ, मगर पानी खामोश रहा। वो रोती हुई बोली, माहम, जरनिश, एक बार वापस आ जाओ। मगर सिर्फ हवा की सर्द आवाज वापस आई। रात गुजरती रही। दोनों परियां झील के किनारे बैठी रोती रहीं। उनके आंसू झील में गिरते रहे और हैरत की बात ये थी कि जहां जहां उनके आंसू गिरते वहां छोटी नीली रोशनियां पैदा होने लगतीं। पहले एक रोशनी, फिर दूसरी, फिर सैकड़ों। अचानक झील के अंदर से एक हल्की सी चमक उभरी। पानी में 3 धुंधले अक्स नजर आए, अंबर, जरनिश और माहम। नैयरा और सहर हैरत से खड़ी हो गईं, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए जाहिर हुए। अंबर की रूह ने नर्म आवाज में कहा, सच्ची तौबा दिल को बदल देती है। माहम ने कहा, मगर कुछ जख्म वक्त मांगते हैं। और जरनिश की मध्यम आवाज हवा में गूंजी, अगर तुम वाकई बदल चुकी हो तो अब इस वादी की हिफाजत करना। फिर तीनों रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता झील में गायब हो गईं। नैयरा और सहर घुटनों के बल गिर गईं। वो जान गई थीं कि शायद उन्हें मुकम्मल माफी कभी ना मिले, मगर अब उनकी बाकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अपनी सहेलियों की कुर्बानी की हिफाजत करना। Like, comment, and subscribe. Gichilmuchu 1.